Please don't try to find my address after this. I'm still a virgin and don't wanna die that way. Delhi, 25th November 2024. मैं जीवन में पहली बार दिल्ली गया to buy shoes for my sister's wedding and eat a lot of food, a lot of it. क्योंकि perhaps दिल्ली में कुछ ज्यादा ही अच्छा खाना मिलता है in a large variety offered by shops जो कि कम से कम 50 से 60 साल पुरानी तो है ही, including this and this. Now this is the exact place where the hatred begins. Quick question for the people जो दिल्ली से नहीं है and have never been to Delhi. What do you think this shop offers? What do you think this shop sells? I've blurred out the easy giveaways. Do you have the answer? 3, 2, 1. तेरी माँ चूत, you're wrong. You're wrong. You just straight up wrong. ये shop sell करती है shawarma. Concept shawarma. Yeah. This is in Lajpat Nagar. Delhi में for some reason everyone wants their shop to feel and look unique even though it doesn't make sense. मतलब तुम literally किसी भी shop पे legit गर्म गोबर बेच सकते हो with the name special in front of it and it will sell like a blowjob from a 2-cent whore on a truck stop on a Saturday night. Too specific. I genuinely don't feel the reason why people feel obliged to tell everyone that is not from Delhi कि भाई एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा ना तेरे को छोले भटूरे वाली तेरी गांड फट जाएगी खा के and when you actually arrive there it looks like this and taste even more mediocre. पता मेरे को क्या लगता है दिल्ली के लोग फूड वेंडर्स एंड शॉप्स को उनके टेस्ट के बेसिस पे जज नहीं करते बल्कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट डेट के बेसिस पे जज करते हैं. एक सर्टेन शॉप जो कि 1987 से वहां पे है, एक्स छोले भटूरे वाला since 1987 can sell you with the keyword special in front of it and people will go like exquisite. For some reason, people, I'm not a professional hater and no one paid me to hate on the shops that I'm ranting on. अगर पे किया होता तो मैं YouTube वीडियो ना बना रहा होता in the hopes of getting paid one day in future. Anyway, दिल्ली का लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट was legit a very unexpected, weirdly populated place for me. I saw a big Afghani lot there. I saw a lot of other foreigners from other country as well. I saw a lot of ये बहनचोद यहाँ पे क्या कर रहा है kind of people. But a common impression that I got from my first 15 minutes in Lajpat Nagar Central Market was बहनचोद पाँव रखने की जगह ही नहीं है. Fuck is this acceptable, भाई? इस टाइम पर मैं था लाजपत नगर सेंटर मार्केट में and this place seemed like the reference point for the color grading that USA uses for most Indian cities. Also Delhi in winters is also the reference point for color grading. Anyway, सब कुछ बहनचोद पीला भद्दा सा incomprehensible mix of multiple kind of noises. Like it's so weird that if you were to squint your eyes, everything will turn into yellow or a mix of भगवा. I mean, भगवा तो नहीं, दिल्ली में तो नहीं बनी, I know. And वहां पर सारा का सारा क्राउड in the central market, सारा का सारा क्राउड बस खा रहा है, सब बस खा रहे हैं. एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैं ऐसी किसी छोटी मोटी मार्केट में तो नहीं हूँ दिल्ली में, लाजपत नगर सेंट्रल, सो आई मीन कंसिडरिंग द शोरूम्स एंड ऑल इट्स नॉट अ स्मॉल मार्केट. तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई आउट द फूड, लेट्स सी व्हाट ऑल दिस फस इज अबाउट. तो मैंने नजर घुमाई थोड़ी सी कि ऐसा क्या खा रहे हैं लोग एंड आई वांट टू ट्राई दैट सेम थिंग. एंड देन आई फाउंड दिस butt fuck me in the middle of the streets. But if you're telling me कि दाल के पकौड़े mildly salted served with rejected घास फूस from Shani market is peak in Lajpat Nagar, you're lying to yourself and me. And तुम्हारी माँ है मौत के खतरे में. I mean, depending on how many times you say माँ कसम माँ कसम माँ कसम माँ चूत. I'm confusing between Mumbai and Delhi, so correct me if I'm wrong. भाई लोग कढ़ाई से सेंटीमीटर्स दूर हैं. Aunties are choking literally on balls made from dal. Literally choking for a mediocre dish. इतनी भीड़ है वहां पे. मेरे को पता है कि राम लड्डू इज अ डेलिकेसी एंड कुछ लोग काफी सही बनाते हैं, बट दिस इज नॉट इट. दिस कैन नॉट बी इट. जो मल्टीपल कैशियर्स हैं, इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं पर मिनट. टोटल एम्प्लॉइज इन द शॉप आर मोर देन कस्टमर्स पर आवर ऑन दैट शॉप. इतना ज्यादा बिजी ऑर्डरिंग स्कीम चल रहा है. ब्रेड पकौड़े सड़ रहे हैं बैकग्राउंड में बिकॉज एवरीवन वांट्स राम लड्डू. No one try other things. And वहीं पे on the same chalk मैंने खाया ये वड़ा पाव. And it was okay. It was genuinely good. It was great. मैं उसको बुरा बोलूंगा ही नहीं क्योंकि वो सही में टेस्टी था. And makes sense कि वो टेस्टी था and good था because दुकान पे 20 लोग भी नहीं है on a weekend. So it was destined to be good because it was not overrated as fuck. And that brings me to my second point. दिल्ली की सबसे elegant जगह, showrooms and hangout spots and what not, ये दिल्ली के लोगों के लिए बनी ही नहीं है. इवन दो दिल्ली में 8x4 के प्लॉट 10-10 करोड़ के बिक रहे हैं, स्टिल हर बंदा करोड़पति नहीं है. द एक्चुअल पीपल दैट कैन अफोर्ड गुड प्लेसेस, पीसफुल प्लेसेस एंड जेन्युइनली गुड रेस्टोरेंट्स इन खान मार्केट, उन झाटुओं की इनकम INR में हो ही नहीं सकती बिकॉज
they just don't seem like they belong to Delhi. So just to act like कि we people of Delhi जो किराए पे रह रहे हैं, we belong in these places, वो करते हैं इन places के owners को dick ride every 2 minutes in front of non-Delhi people. उन्हें बेसिकली ये कन्वे करना है कि ये जो झाटू सा स्टॉल है ना, जिसे तू मीडियोकर बता रहा है, जो कि एक्चुअल मीडियोकर खाना बेच रहा है, इस बंदे की भाई वो पापड़ी चाट इतनी बकवास थी 20 करोड़ की संपत्ति है एक फलानी जगह पे. और द प्रॉपर वे टू डिस्क्राइब इट एज दे से, भाई इस बंदे का है मोटा हिसाब. दैट्स व्हाट दे यूजुअली से, एटलीस्ट मेरे से तो कहा था. सो दे बेसिकली वांट टू कन्वे कि भोसड़ी के जो तू गोबर से टेस्ट का गोलगप्पा खा रहा है ना, इसको औकात के हिसाब से रिव्यू दियो. औकात नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट ऑफ गोलगप्पा, नहीं, ओनर की क्या औकात है उसके बेसिस पे रिव्यू दियो. That doesn't make sense. दिल्ली में फूड फ्लॉन्ट करने का ये रीजन नहीं है कि वहां पे फूड इज द बेस्ट. नो, दिल्ली में फूड फ्लॉन्ट करने का ये रीजन है क्योंकि वहां पे नथिंग एल्स इज अफोर्डेबल आउटसाइड ऑफ फूड टू एवरीडे पीपल. भाई झूठ मत बोलना. दिस डज नॉट रिप्रेजेंट दिल्ली, दिस डज. एक फूड दिल्ली नाम का इंस्टा अकाउंट है दैट शोज द बेस्ट काइंड ऑफ फूड यू कैन गेट इन दिल्ली. 290K plus followers, 5K plus post and verified account. This is the best Delhi has to offer. तो फिर रील पे एवरेज 3K लाइक्स क्यों है? 23 कमेंट्स, ऑलमोस्ट नो शेयर्स. व्हाई? Is this not the representation of Delhi? Is this not Delhi? Because I think this is Delhi, but according to you people, it's not. Weird. I understand Delhi is the capital of India, but tell me why Chandni Chowk, the most expensive clothing market in Delhi, is popular because it's cheap. Shop owners in that market, Arun being the most popular one, are multi-millionaires, but उनकी दुकान में घुसने से पहले you feel obliged to have like a good health insurance, क्योंकि उनकी दुकान के बाहर कीचड़, biohazards and ton of नंगे तार पड़े हुए हैं. क्यों? Why? I'll tell you why. Because majority of these spots are built for people that wanna buy products in bulk. Gafar, Sarojini and a lot of other markets are selling cheap copies of brands, actual brands, and that is the actual representation of Delhi. दिल्ली के लोग अगर दिल्ली को खुद afford कर पाते, then why would Delhi be the hotspot of major brand copies? Why? काफी showrooms है दिल्ली में, expensive and very exquisite, very नीश. तो तुम्हें कॉपीज पे रीजनिंग की क्या जरूरत पड़ रही है बे? Why? That is it. Bulk consumption is what makes Delhi Delhi. पता है what's not bulk consumption friendly in Delhi? Khan Market. Khan Market straight up is like a pocket dimension. You walk through a portal and then you walk into a place जो दिल्ली को belong ही नहीं करती. So bright, so clean, so calm and so walk friendly. Just वॉक फ्रेंडली फॉर नॉर्मल पीपल. कभी सुना किसी को बोलते हुए कि भेड़ चोद खान मार्केट चलिए, तेरे को वहां के छोले भटूरे खिलाऊंगा, तेरी गांड फट जाएगी. भाई लेजिट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, हो सकता है कि खान मार्केट में छोले भटूरे खाने के लिए तुम्हें एक्चुअल में गांड पड़वानी पड़ जाए. ट्रस्ट मी ऑन दैट. खान मार्केट चलिए भाई, तेरे को वहां से दिलाऊंगा जूते. नहीं, कभी नहीं कहा किसी ने, मेरे से तो नहीं कहा. दैट वाज माय फर्स्ट विजिट एंड द पर्सन दैट आई वेंट विद एक्चुअली वाज फ्रॉम दिल्ली. मेरे से तो नहीं कहा उसने. द फनीएस्ट थिंग इज दैट द मोस्ट पॉपुलर थिंग आउटसाइड द खान मार्केट, जस्ट आउटसाइड द खान मार्केट, द मोस्ट पॉपुलर मिडिल क्लास टू लोअर क्लास थिंग इज आंटी के मोमोज ऑन अ स्मॉल स्टॉल. शर्म की बात नहीं है. मतलब not for auntie, she makes damn good momos, but very ironical. I can imagine people saying कि भाई भोसड़ी के खान मार्केट चलिए, तेरे को मोमोज खिलाऊंगा, आंटी के गांड फट जाएगी. Meanwhile हम legit खान मार्केट के बाहर खड़े हैं, हम उसके अंदर भी नहीं है. इतना बड़ा सेंटेंस just to include खान मार्केट, the term खान मार्केट in your middle class endeavors. Just straight up pathetic loser behavior. Straight up. The most Delhi place in Delhi was Golf Link. तुमने देखा कि मैंने कैसे shift किया from Delhi to Delhi? Golf Link is that place. Major multi-millionaires, all of them live there. वहाँ पर भी गया था मैं to experience कि मैं कितना छोटा आदमी हूँ और मेरे को अभी कितनी गांड बनानी है मार्केट में to become even a fraction of those people. Even in that place, I'm assuming दिल्ली का कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर होगा. Majority बंदे ऐसे होंगे जो act करेंगे उस एरिया में जाके कि जैसे उनका बाप उन विलास में रहता है. They will. Without shame. देख भोसड़ी के टोपाज का मालिक, 10 पोर्श, 20 लैम्बो, 4 फरारी और सब में 20 कुतिया ईच. सबको लाइन से देख लेना तूने अंदर, तेरी गांड फट के हाथ में आ जाएगी. मीनवाइल जो बंदा पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा है, उसने झांट खुद कुछ नहीं देखा आज तक उन कोठियों के अंदर. नेवर. He's just assuming. But proud moment है वैंचो. हम बेशक रह रहे हो दिल्ली में 4x4 के एक कमरे में, जिसका हम 20,000 रुपए 30,000 रुपए किराया दे रहे हैं in an unnamed colony with an unmarked unnamed शौचालय in front of our house or the room that we are renting. पूरे दिन बदबू रहती है. But proud moment है भाई. हम ऐसे स्टेट, ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहां पे मल्टी मिलियनर्स रहते हैं.
हम खुश हैं, दिलासा दे रहे हैं अपने आप को, हमें चूतिया। यही दिलासा देने के चक्कर में तो तुम आज भी झांटू हो और जीवन भर रहोगे। तो मरो बैंचो, मराओ गांड भाई। द पीपल दैट आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड, दे डोंट शो ऑफ अदर पीपल्स स्टफ, दे आर लिविंग द लाइफ दैट दे कैन अफोर्ड। बट हाँ, तुम चूतियापंती कंटिन्यू रखो भाई। यू आर रिप्रेजेंटिंग दिल्ली। बाय।